bestow and honor our gurus, teachers, and mentors who show us the right and correct path to live our lives successfully and steadily. And we as their students should respect, regard, and reverence our teachers and gurus who always provide a helping hand and support us all at crucial times. So let's take the time out today and celebrate this auspicious day by paying respect to our gurus. Firsthand, I would like to call upon Ms. Amrita Akraniji to please light the deepa and offer flowers to Guruji and Mataji. Now, I would like to call upon stage Manoj, who is part of the Bal Sanskar Shala here in Burlington, and he's going to give us a presentation on Guruji's biography. Please note that this was independently created by him, so please give a big round of applause. I'm Manoj, and today I'll be presenting a presentation for Elder Pandit Sriram Sharma Acharya. Pandit Sriram Sharma Acharya was an intellectual soul. He considered himself as a very common person. In one of his quotes, he said that he was not a person but a thought. He was very kind-hearted that he was recognized as the biggest power of the modern era. His favorite hobby was social service. Amalkera, a small town in Bengal, was a very ordinary place. Being the birthplace of such a great son made it very famous. Millions of devotees came to the Gayatri Shakti. His father's name was Pandit Rupert Sharma and his mother was recognized as Nandamar Sharma. His father was a scholar of Srimad Bhagavatam and his mother was a social service helper. As he grew older, he took interest in learning yajnas, prajnas, and many more daily rituals. He even listened to his father whenever he read his literature. Due to his fearlessness, he would go into the forest and worship under a large tree. He had a sense of faith, so every day after school, he would distribute food, clothes, and water to those in need. His favorite hobby was social service. For example, the mayor of the town was very selfish and greedy. One day he got ill. No one came to help him out, but Sriram came. He provided medicines, took care of him, and after he was cured, he gave a very famous quote to the village. Always hate sin, not the sinner. As he got mature, his father trusted him with the spirit and said to him, "There's no harm from using your hands for self-defense." Sriram used his time wisely, reading Sanskrit literature and sketching homes and swastikas on the ground. Sriram could not tolerate inequality. For example, one day a British came chasing a nobleman on a horse. Sriram threw a brick at his forehead and made him go away. Sriram treated good people and bad people the same way. Due to his maturity, Pandit Rupert Sharma thought that Sriram was old enough to learn Gyan Sanskar by his friend Madan Mohan Malviyaji in Kashmir. Malviyaji advised Sriram to do only one thing, which was to chant Gayatri. Respecting his Guru's advice, he sat in the prayer hall chanting Gayatri until a rishi appeared from the smoke. "Don't be afraid of me. I've come to help you live. In your previous lives, you were great sons, and in this one, you will have to be one again. You will have to work hard, or don't give up." As the rishi disappeared. At that moment, Sriram decided that he was going to change the world. To do this, he created a thought revolution mission. The purpose of this mission was to change everyone's negative thoughts to positive. At that current moment, India was ruled by Britain, so as a freedom fighter, he fought against Britain. As a result, he got imprisoned.
After releasing from jail, he got married to his wife Mata Bhakti Devi Sharma. He worked on his mission and wrote 3,200 books. He didn't completely succeed on his mission, but he changed a lot of people's thoughts. After his mission, he headed for the Himalayas, and unfortunately, our elderly Gurdev's death was mentioned on 2nd June 1990. Thank you so much, Mayush. That was very impressive. Now I would like to hand over the mic to Rakesh Uncle to please start today's event. Thank you, Vishaka, for welcoming us. And thank you so much, Mom. What a wonderful presentation. तो देवियों सज्जनों, आप सबको गायत्री परिवार वेस्टर्न ऑडिटोरियम की तरफ से प्रणाम, नमन। आज हम लोग गुरु पूर्णिमा सेलिब्रेट कर रहे हैं। कल हम लोगों ने गायत्री चेतना सेंटर में सेलिब्रेट की थी, आज यहाँ पर कर रहे हैं। गुरु पूर्णिमा है क्या? अपने गुरुओं को, अपने उच्च स्तरीय शिक्षकों को, अपने मेंटोर्स को हम भाव भरा सम्मान करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, अपने उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए। सबके जीवन में कोई ना कोई ऐसा क्षण आया है जबकि उनको कोई ऐसा गुरु मिला है, कोई ऐसा शिक्षक मिला है, कोई ऐसा गाइड मिला है जिसने जीवन को दिशा धारा ऐसी दी कि व्यक्ति का पूरा जीवन बदल गया। गायत्री परिवार में करोड़ों लोग जो जुड़े हुए हैं, उनके जीवन में एक आशा की किरण बन के आए परम पूज्य गुरुदेव वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जिनके बारे में मानुष बहुत सुंदर से प्रेजेंटेशन दिया, उनके बचपन से लेकर उन्होंने क्या क्या काम किए। और सब जानते हैं मोस्टली गायत्री परिवार की परिजन है। आज गुरु पूर्णिमा का जो पर्व सेलिब्रेट कर रहे हैं, भजन संध्या के माध्यम से कर रहे हैं और इसमें जितने भी भजन है सब परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी श्री चरणों में समर्पित हम कर रहे हैं। एक छोटा सा प्रयास है, बस इतना बता रहे हैं कि हम में से कोई भी म्यूजिशियन नहीं है, हम लोग बस छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं, गुरुदेव के शिष्य हैं। और हमारे साथ जो एक यश है, ये असली म्यूजिशियन है और इधर आकर बैठा है। आप देखना है इन लोगों की छोटे छोटे बच्चों कमाल की प्रतिभाएं हैं और इनके सहारे हम चल रहे हैं। तो आप लोग इनको जरूर अप्रिशिएट करिएगा और हमारे से गलतियां होंगी तो उससे इग्नोर कर दीजिएगा, हम लोग एक्सपर्ट नहीं। लेकिन कोशिश करेंगे कि आप अपने भाव से, अपने विचार से गुरुदेव श्री चरणों में जुड़े। जो यहाँ से प्रज्ञा गीत हो रहा है उसकी एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर भाव है, उस पर विचार जरूर करें। ये जो गुरु पूर्णिमा का जो पर्व है वो वेद व्यास जी को समर्पित होता है। वेद व्यास जी कौन थे? सबको मालूम है। वेदों का संकलन उन्होंने किया, अपने 4 शिष्यों को उन्होंने सिलेक्ट किया कि एक को ऋग्वेद की शाखा, एक को यजुर्वेद, एक को सामवेद और एक को अथर्ववेद, चारों का संकलन करवाया वेद व्यास जी ने। वेद व्यास जितने भी आज ग्रंथ हैं सब में कहीं ना कहीं दर्ज आता है कि इन्होंने इतना कंपाइलेशन किया, खुद उन्होंने लिखा, खुद अपने शिष्यों को ट्रेन किया और प्रचार के लिए भेजा। अब जो व्यास पदवी होती है, व्यास से कोई व्यक्ति का अटैच नहीं होता है। हर युग में व्यास आते हैं। इस युग के जो व्यास है वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी हैं, जिन्होंने चारों वेदों का हिंदी में भाष्य किया, 18 पुराण, 108 उपनिषद, दर्शन, स्मृतियां सब का हिंदी में अनुवाद किया और उसके ऊपर 3000 से ज्यादा पुस्तकें की। तो उनको युग ऋषि के साथ साथ युग व्यास की संज्ञा भी दी गई। ऐसे गुरु को हम नमन करते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग कमर सीधी कर लें, सब लोग यहाँ बैठे हैं, दोनों हाथ गोदी में रख लें। परम पूज्य गुरुदेव ने हमें गायत्री मंत्र से उत्प्रोत किया, सद्बुद्धि का मंत्र। उसी मंत्र को अपने शरीर पर, अपनी आत्मा पर, अपने मन पर लपेटते हैं और सस्वर प्रेम पूर्वक उसका आचरण करते हैं। भावना यही रहे कि गायत्री माता की गोद में बैठे हैं, खूब स्नेह पा रहे हैं, खूब ब्लेसिंग मिल रही है, स्वस्थ होते हुए चले जा रहे हैं।
पढ़ने जा रहे हैं। व्यास जी का भी विशेष मंत्र आप पढ़ेंगे। हमारे बीच अतुल जोशी जी भी पधारे हैं और अगर आपने ध्यान दिया होगा, एक बार हमने कल्चर प्रोग्राम किया था, इनफैक्ट 2 बार उन्होंने गायत्री प्रोग्राम की स्टेज पर आके बहुत शानदार प्रस्तुति की थी गणेश मंगला की। आज हमारे बीच में है विशेष गीत लेकर, और जैसे ही उनकी तैयारी होगी तो बता दीजिए। ओम ब्रह्मा पार्टिसिपेशन किस तरह होती है और उनको पहले डिस्कस किया जाता है कि जो गीत गाया जा रहा है उसका भाव क्या है। तो बड़ी खुशी की बात है, बाल संस्कार शाला में बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आए हैं, सबको थोड़ा काम दिया गया है, वो उनकी भी प्रस्तुति आ गया होगा। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करना चाहता हूँ। आदर यहाँ बैठे हैं जो नाल पर साथ दे रहे हैं, यश है, बहुत से गॉड गिफ्टेड है, तो कीबोर्ड पर आप देखिए जानते देंगे, अल्पेश भाई हैं, सबको आप जानते हैं वैसे, मुकुंद जी है, देवेंद्र जी है, मनर भाई, लता में, ईशानी में, वर्षा में, रोशनी और स्वाति में। तो ये जो लंबी चौड़ी टोली हम लोग दिख रही है, ये छोटे छोटे प्रयास किया हम लोगों ने, पर है आपके परिवार के हम लोग। आप लोग एंजॉय करिए। आज का भजन संध्या का कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करिए, अपने गुरु को नमन करते हैं। बच्चों से यहाँ पर आ जाइए और थोड़ा इंग्लिश पर समराइज करेंगे गीत है क्या और हम गीत में क्या करने जा रहे हैं। A guru is a spiritual master who takes a disciple from darkness or ignorance to light or knowledge. In this song, a disciple is praising his guru by saying that you are a creator or promoter of good qualities, and at the same time, removers of bad qualities lying within me. With their kind blessings and help, I got a new vision to move forward in the right direction. This song is devoted to our Guruji, Pandit Sri Ram Sharma Acharya Ji. Thank you. आइए गुरु को नमन करते हैं।
दो माने अंधकार, दो माने प्रकाश, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली शक्ति वेद मुक्ति तत्वनिष्ठ पंडित राम शर्मा आचार्य के श्री चरणों में प्रथम प्रस्तुत। कोटि कोटि के प्राण तुम, गुरु पितु मातु समान, कोटि कोटि सत नमन प्रभु, युग ऋषि संत महान, आओ तुमको करें हम नमन, क्यों न गुरु को करें हम नमन, आओ गुरु को करें हम नमन, क्यों न गुरु को करें हम नमन। मुक्ति का द्वार है जिनकी पावन शरण, मुक्ति का द्वार है जिनकी पावन शरण, दृष्टि जिनकी करे बात को का समन, दृष्टि जिनकी करे बात को का समन, आओ गुरु को करें हम नमन, क्यों न गुरु को करें हम नमन। कौन गुरु से बड़ी शक्ति है विश्व में, कौन गुरु से बड़ी शक्ति है विश्व में, कौन गुरु से बड़ी भक्ति है विश्व में, कौन गुरु से बड़ी भक्ति है विश्व में, विष्णु शिव और ब्रह्मा की सबसे बड़ी, कौन सी और अभिव्यक्ति है विश्व में, कौन सी और अभिव्यक्ति है विश्व में, इन सभी से करें गुरु चरण, आओ गुरु को करें हम नमन, इन सभी से बड़े गुरु चरण, आओ गुरु को करें हम नमन, आओ गुरु को करें हम नमन, क्यों न गुरु को करें हम नमन। मेरी भव सिंधु दिव्य पतवार है, मेरी भव सिंधु की दिव्य पतवार है, करते भव सिंधु से वे ही उद्धार है, करते भव सिंधु से वे ही उद्धार है, प्राण का बिंदु उनको समर्पित किया, मेरी लहरा है प्राण के बिंदु में, मेरी लहरा उठे प्राण के बिंदु में, बस वही है करुणा करन, आओ गुरु को करें हम नमन, बस वही तो है करुणा करन, आओ गुरु को करें हम नमन, आओ गुरु को करें हम नमन, क्यों न गुरु को करें हम नमन। सूर्य बनकर हृदय का सघन तम भरे, सूर्य बनकर हृदय का सघन तम भरे, चंद्र बनकर
मुक्ति का द्वार है जिनकी पावन शरण, मुक्ति का द्वार है जिनकी पावन शरण, दृष्टि जिनकी करे पापियों का शमन, दृष्टि जिनकी करे पापियों का शमन, आओ गुरु को करें हम नमन, क्यों न गुरु को करें हम नमन, आओ गुरु को करें हम नमन, क्यों न गुरु को करें हम नमन, आओ गुरु को करें हम नमन, आओ गुरु को करें हम नमन। बड़े ब्रह्म पूज्य गुरुदेव की आओ गुरु को करें हम नमन, क्यों ना गुरु को करें हम नमन, क्यों ना करें, क्योंकि हमारे गुरुदेव तो इतने श्रेष्ठ हैं, जिन्होंने कितने जीवनों के अंदर लड़खड़ाते जीवनों को सहारा दिया, प्राण तक भरे। एक छोटी सी घटना याद आती है, अगर आप शांतिपीठ हरिद्वार गए हो, बहुत सारे अपने ऐश्वर्य की परियोजना जाते हैं, देव संस्कृति विश्वविद्यालय में एक सुदर्शन कुमार जी पढ़ते हैं, वहां पर नाम भी करते हैं सुदर्शन कुमार, उनके फादर का नाम है विजय कुमार शर्मा, और विजय कुमार शर्मा जी गायत्री तपोभूमि मथुरा में पढ़े हुए हैं, जहाँ मैं भी पढ़ा हूँ एक साल, तो बहुत सीनियर हुआ करते थे हमारे। ये बात 1969 दिसंबर 1969 की है। विजय कुमार शर्मा जी तब बहुत छोटे हुआ करते थे, तब गायत्री परिवार से ज्यादा जुड़े भी नहीं थे, और जमालपुर एक जगह है बिहार में, जमालपुर, वहां के रहने वाले थे। तो वो अपने माता जी के साथ पटना गए, क्योंकि पटना में परम पूज्य गुरुदेव यज्ञ करवाने पहुंचने वाले थे। तो उस वक्त तो 5-5 फुट यज्ञ भी बहुत बड़े हुआ करते थे, तो सब लोग पटना पहुंचे, यज्ञ हुआ, बहुत शानदार यज्ञ हुआ, सबने बुरी बुरी प्रशंसा की, और बस गायत्री में होके वापस लौट रहे थे पटना रेलवे स्टेशन पर, अचानक क्या हुआ, उनकी माता जी के पेट में बहुत दर्द हुआ, और इतना सीवियर दर्द हुआ कि वो वहाँ बेहोश होकर पड़ी। उन्होंने थोड़ा कोशिश की नींबू पानी देने की, शायद ऐसे चक्कर आ रहे हैं, ऐसे करके तो पेट दर्द ठीक हो जाएगा, कुछ हुआ नहीं, स्थिति बिगड़ती गई बिगड़ती गई बिगड़ती गई, और ऐसी सिचुएशन आ गई कि उनके मुंह से व्हाइट झाग गिरने लगा, और थोड़ी देर बाद उनकी डेथ हो गई। रेलवे स्टेशन पर थी, वहां के डॉक्टर्स आए और चेकअप किया, अब तो कोहरा मच गया, अब बेचारे छोटे से अपनी माता के साथ, तो बहुत ही छोटे थे, अब क्या करें। ऐसे रेलवे स्टेशन पर जो पुलिस होती है, जीआरपी वाले, वो भी आए, उन्होंने अपना स्टार्ट कर दिया पंचनामा लिखना और सब कुछ करना, और फिर क्या होता है, कहीं इसी क्रम में 2 से 3 घंटे गुजर गए। अचानक विजय कुमार शर्मा जी ने आवाज सुनी, परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय। तो उन्होंने देखा प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे गुरुदेव सीढ़ियों से उतर के नीचे आ रहे थे, और उनके पीछे पूरा जन सैलाब था, क्योंकि गुरुदेव को जाना था मथुरा के लिए, और ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। जब उन्होंने देखा तो उनको समझ में कुछ नहीं आया, दौड़ लगा दी, और एक प्लेटफॉर्म नंबर 1 क्रॉस किया, वहां ट्रेन खड़ी थी, उसको उस ट्रेन के अंदर से घुस के अपने रेल की पटरियों से होते हुए दूसरे प्लेटफॉर्म पे चढ़े, तीसरे पे और चौथे प्लेटफॉर्म पे पहुंच गए, और बेतहाश भागते हुए गुरुदेव के पैरों में लिपट गए, रोने लगे। मुंह से बस निकला, गुरुदेव ने हाथ रखा कंधे पे, बेटा क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है। रोते हुए बच्चा बोलता है, गुरुजी मेरी माता ही है, मेरी माँ कुछ हुई, मेरी माँ नहीं रही गुरुजी, बस उससे कुछ नहीं कर पाया, और रोते 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 छोटा सा बच्चा। गुरुदेव ने जब देखा तो उन्होंने कहा, कहाँ करी माँ, तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 था। गुरुदेव वापस जाते, ऊपर से ब्रिज से क्रॉस करके प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आते हैं, और देखते हैं वहां सारे पुलिस वाले खड़े हैं, डॉक्टर खड़े हैं, लोग खड़े हैं, मरी पड़ी है लाश है, और उनको मक्खियां भी भिनभिना रही डेड बॉडी पर। गुरुदेव ने देखा, और गुरुदेव ने देख के कहा, बेटा उठा अपनी माँ को। तो देखते रहे क्या बच्चा, मेरी माँ है, तो उसकी डेथ हो गई, मैं कैसे उठाऊं, मजाक तो नहीं कर रहे।
बोले बेटा उठा अपनी माँ को, हंसते हुए मुस्कुराते हुए बेटा उठा, माँ को कुछ नहीं, उठा। तो उन्होंने ऐसे ही कि गुरुदेव फोन कर रहे हैं, मैं भी ट्राई कर देता हूँ, माँ उठ जा, माँ उठ जा। सारे लोग हैरान हो गए देखे कि माता जो है उनके शरीर हरकत हुई और माता ऐसे उठी जैसे सो के उठ रही है। बोले बेटा अरे गाड़ी आ गई क्या? विजय कुमार शर्मा जी की बात। और वो सारे जय घोष करने लगे। वहां पर रेलवे स्टेशन में जो डॉक्टर्स थे उनके शिष्य बने, और जो जीआरपी रेलवे स्टेशन में जो जीआरपी वाले जो पुलिस वाले थे वो देख के हैरान हो गए वहां पे, और कुछ ही क्षणों में फिर से खुशी आने लगी। तो क्यों ना नमन करें अपने गुरु। आज का जो हमने पहला गीत गुरुदेव श्री चरणों में किया, हमारे गुरुदेव ने प्राण डाले हैं, जीवन दिया है, और ये तो हुआ जीवन। निर्जीव जो लोग पड़े हुए हैं, चलती फिरती लाशें हैं, संपन्न है लेकिन ये नहीं मालूम क्या किया जाना है, भौतिक रूप से सुखी है लेकिन नहीं मालूम कि दूसरों को हम कैसे हेल्प करते हैं। उसके लिए गुरुदेव ने हमें दिशा धारा दी है। मित्रों, ये परम सौभाग्य की बात है, उनके शिष्य हैं। परम सौभाग्य की बात है जब इस महान अभियान का एक अंश हो सके हैं उनकी कृपा से। आइए दूसरा गीत प्रस्तुत करते हैं हम गुरुदेव के इसी चरणों में। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंदा, ये थोड़ा पंजाबी सॉन्ग है, आप एंजॉय करेंगे पंजाबी सॉन्ग को भी। और हमारे बाल संस्कार शाला के देव वोरा
गुरु की सेवा दुख ना लागी, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद। जब पूजा करते हैं गुरुदेव भी ध्यान आते हैं, क्योंकि गुरुदेव को अपने पास था। तो ऐसे ऐसे गुरु जब प्रार्थना करें प्रेयर करें तो वो स्वयं ही उसमें आ जाते हैं। जैसे परम पूज्य गुरुदेव जब छोटे थे 14 वर्ष के उम्र में, तो उनकी जैसे कि इमाम ने बताया, जब छोटे थे तो उनके कमरे में कौन आया? सर्वेश्वर उनके गुरु थे। उन्होंने जो कि महायोगी हैं, सूक्ष्म अवस्था में हिमालय की बीहड़ जो चोटियां हैं बर्फ से लगी हुई नंदन वहाँ रहते हैं, और उन्होंने उनको अपने दर्शन दिए और बताया कि पिछले 3 जन्मों में तुम मेरे शिष्य रहे हो, चौथा जन्म है, बहुत महत्वपूर्ण जन्म है, और इस जन्म में युग निर्माण की एक घोषणा करनी है और ऐसे व्यक्ति को देना चाहते हैं जिसका पिछला जन्म संकल्पों से भरा हुआ और जिसने कर्म ऐसे कर्म किए हुए जिसने सबको दिशा प्रवाह एक और कर दी हो, और उसमें हमने तुम्हें पाया है। इसलिए तुमको हम यज्ञ की लाल विशाल विचार क्रांति की लाल विशाल तुम्हें दे रहे हैं, तुम्हें सौंप रहे हैं। और गुरुदेव उसी का सहारा लेते हुए आगे बढ़ते चले गए। हम लोगों को जन्म दिलवाया, हम लोगों से कर्म करवाया, और आज भी गाइड कर रहे हैं सूक्ष्म अवस्था में। तो ऐसे ही गुरुदेव हमारी प्रेयर्स में हमेशा मौजूद रहते हैं। ऐसे गुरु को नमन। आइए आगे बढ़ते हैं। अब जो गीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं हम लोग, वो है जय अम्बे जय जगदम्बे। अम्बे की आज आवश्यकता है, दुर्गा शक्ति की आवश्यकता है, क्योंकि दुर्गा शक्ति गुरुदेव ने कहा संगठन को मजबूत बनाने वाली शक्ति है। हम सब बिखर गए। आज आतंकवाद क्यों फैल रहा है हर जगह? क्योंकि गलत लोग ज्यादा जुड़ते जा रहे हैं, ज्यादा मजबूती से जुड़ते जा रहे हैं। अच्छे लोगों की किसी को फिक्र नहीं, अच्छे होते हैं, हम अच्छे हैं, अच्छे विचार रख ले हैं, बस ठीक है। दुनिया में ऐसा नहीं होता है। हम बदलेंगे नारा जरूर लगाया जाता है, लेकिन एक कदम आगे बढ़ना ही पड़ेगा। व्यक्ति निर्माण के बाद गुरुदेव ने दूसरा सूत्र दिया है परिवार निर्माण, और परिवार निर्माण के बाद तीसरा सूत्र दिया है समाज निर्माण, उसके बाद देश निर्माण, फिर राष्ट्र निर्माण। तो हम क्या केवल ये सोच लें कि बस मैं ठीक हो जाऊँ सब ठीक हो जाएगा, वो तो पहली का ये तो शर्त है पहली। लेकिन वो ठीक हो गया तो हमें आगे बढ़ना ही पड़ेगा। अपने परिवार को अच्छे संस्कारों से उत्पन्न करना पड़ेगा, और विश्व निर्माण के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा बच्चों। और हम यहाँ विश्व निर्माण के लिए हम तो एम्बेसडर, भारत के सांस्कृतिक एम्बेसडर जो कहीं है तो यहाँ बैठे थे, भारत के सांस्कृतिक एम्बेसडर्स। और गुरुदेव माता जी का बरदस्त वाले ऊपर, तो हम क्यों ना सोचे अच्छी बात सोचे और आगे बढ़ाएं। निश्चित रूप से कुछ ही वर्षों में देखेंगे, जैसे प्रणव भाई साहब ने भी लेक्चर में बताया गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में, कि अगले 10 जो वर्ष है वो बहुत महत्वपूर्ण सबके लिए। और हम नव युग की जो किरणों को महसूस कर पाएंगे, नव युग की थोड़ी बहुत झलक हमें निश्चित रूप से दिखाई पड़ने लग जाएगी। ये ऋषि की योजनाएं चल रही है, ऋषियों की योजनाएं चल रही है, और उसके दर्शन होने लग जाएंगे। तो मित्रों उसमें हम भी सहकारी बने, हम भी भागीदारी करें, आप सबसे निवेदन है। और उसके लिए माँ दुर्गा की अत्यंत आवश्यकता है, जो हमको आया संगठित करें। इसलिए 9 दिन जब नवरात्रि करते हैं तो ये प्रार्थना की जाती है कि माँ हम सबको आइए संगठित करिए। संगठित कैसे किसको करें? अच्छे विचार, अच्छे कर्म, इससे शानदार जन प्रभाव पैदा हो सके, और रुचि रचने वाले लोग जो हैं वो निश्चित रूप से धराशायी हो, कमजोर बने, मजबूत हो बने, जीवन। आइए हम एक हमारे बीच में बाल संस्कार शाला से मैत्री यहाँ पर है, वो आके इंग्लिश में थोड़ा समराइज करेंगी और फिर हम आगे बढ़ते हैं। This song is
devoted to Goddess Durga, who provides the strength and peace in our lives. We are praying to Mother Durga to guide our intellect in a positive direction so we can get rid of our sins and enhance our good karma. चलिए भक्तिदायिनी शक्तिदायिनी भक्तिदायिनी शक्तिदायिनी भक्तिदायिनी शक्तिदायिनी भक्तिदायिनी शक्तिदायिनी शांतिदायिनी है
किया जा रहा है। ये गुजराती गीत है, तन मन धन गुरुना चरणों चरणों गुरु के चरणों में तन भी है और धन भी है और मन भी है, सब कुछ समर्पण हमने कर दिया। समर्पण, विसर्जन और विलय, हमने सब कुछ समर्पण कर दिया, तभी मानिए सच्चे शिष्य कहलाएंगे। तन मन धन गुरु न चरणों में। तो हमारे यहाँ बाल संस्कार शाला के अच्छा आदर ही बैठे हैं, आदर संभावित करेंगे। This song is about surrendering everything to Guru. Guruji, we are surrendering our tan, man, and time to you. We are sure that you will guide us through tough situations and in right direction. That's why we feel your name is lovable. As our Guru Pandit Sri Ram Sharma Acharya surrendered his whole life to his Guru, Sarvesh Vanji, this song inspires us to do the same as our beloved Guruji. Guru
गीत प्रस्तुत करेंगे। तुझ में ओम, मुझ में ओम, सब में ओम समाया। ओम स्वयं एक परिपूर्ण मंत्र है और ओम के सारे मंत्रों को आप देख लें तो ओम से शुरू होते हैं। ओम मतलब एक सम्मान करता हुआ द्योतक है हर किसी मंत्र का, और जो ओम को भगवान की संज्ञा में दी गई है, जो हमारे अंदर है, वो आपके अंदर है, वो सबके अंदर है। गुरुदेव को जब चिट्ठी लिखते थे तो लिखते थे हमारे आत्मस्वरूप, हमारे आत्मस्वरूप लिखते थे गुरुदेव, ना लिखते थे मेरे बेटा, ना बेटी और ना शिष्य, हमारे आत्मस्वरूप। कितनी बड़ी संज्ञा दी उन्होंने, हमको कहां से उठा दिया, जबकि हम तो उनके चरणों में धूलिए कैसे बना। जिस ऋषि सत्ता ने 24 वर्षों तक घनघोर तपश्चर्या करके गायत्री की, गायत्री को सिद्ध किया, लोगों के निर्जीव, लोगों के अंदर प्राण भरे, और वो हमको कह रहा है हमारे आत्मस्वरूप, और आगे उन्होंने यहां तक कह दिया हमारे अंग अवयव। ऐसे गुरु सत्ता को नमन, सौभाग्यशाली होंगे। उस गुरु सत्ता को नमन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और ये जो तुझ में ओम, मुझ में ओम गीत है, हाँ रोशनी प्रस्तुत कर रही है, हमारी युवा विंग है उस गायत्री परिवार की, उसको रिप्रेजेंट करती है रोशनी, और बहुत अच्छी गाती है। तो पूजा तालियां के साथ स्वागत करें। और अभी हमारे बाल संस्कार शाला के पार्थ यहाँ पर, पार्थ पटेल, वो थोड़ा समराइज करेंगे इंग्लिश में इस गीत को, इस गीत में है क्या। This song is glorifying the Sanskrit word Om, which is also the other name for the Lord. The Om is within me, in you, and in everyone. It shows that we are all connected to the divine power, and so we are all one. Therefore, we should always think good about others. We should try helping others in need and do good deeds. By doing this, everyone will surely be able to live happily and peacefully on this earth. सब में ओम समाया,
गुरुदेव ने कहा कि बेटा हमने जिंदगी भर खूब प्यार किया अपने बच्चों को और खूब प्यार आया, खूब प्यार किया। माता जी ये बात समझाते थे तो माता जी इतना प्यार करती थी, लगता ही नहीं था कि हम किसी और माँ के बच्चे हैं, लगता ही नहीं था किसी और परिवार से आए। जैसे ही बैठो माता प्यार से हाथ सिर पर रखती थी, लड्डू भी खा लेती थी, अब खूब हालचाल पूछती थी, गुरुदेव से मिले, गुरुदेव आ जाते थे, गुरुदेव आते, ऐसे हालचाल पूछते थे, लगता ही नहीं था इतने गायत्री सिद्ध पुरुष हैं, ऐसा लगता ही नहीं था कि यही माता भगवती माता, विश्वास ही नहीं होता था। हमें लगता था बस सबकी सब प्यार पाने के आते हैं, प्यार के अलावा कोई मतलब दिखता नहीं। गुरुदेव ने कहा हमने जो बांटा उसके रिटर्न का हमको हम सबका प्यार करना है। अभी एक घटना याद आती है, चंद्रशेखर सिंह जी का संस्मरण है। उन्होंने लिखा है कि 1971 में दीक्षा ली और दीक्षा लेने के बाद उनको समझ में आ गया कि जो जीवन है वो गुरु सत्ता के चरणों में ही मैं समर्पित करूंगा, क्योंकि वहीं से मुझे जीवन मिला है और उस जीवन का एक एक क्षण मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले जन्मों में पता नहीं क्या किया होगा, गुरु ने मुझे चूज किया और मुझे मनुष्यत्व प्राप्त करवाया, तो उसका एक भी क्षण गवाऊंगा नहीं और संकल्पित हुआ और जम के काम किया। 1981 में एक सुपौल जगह है, ये मुंगेर में पड़ता है बिहार में, और वहाँ एक गांव था गोराबान सिंह गांव है। वहाँ के मुखिया जो सरपंच थे वो अपने यज्ञ करवाना चाहते थे इनसे चंद्रकिशोर सिंह जी से। बात तय हो गई कि हमारे यहाँ आइए फलाने दिन और हमारे यहाँ पूजा करिए, यज्ञ करिए और हम सब लोगों को बुलाएंगे। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, हम जरूर आएंगे आपके। बातों में, क्योंकि क्या होता है गांव के पास नदियां भी होती हैं और बाढ़ का समय, तो उनको ये पूछना भूल गए कि क्या जब आपके यहाँ मैं आऊँगा तो क्या वहाँ बीच में नदी वगैरह पड़ती है, तो क्या अपनी व्यवस्था से आऊँ या नहीं आऊँ, तो पूछना भूल गए और वो भी बताना भूल गए कि बीच में नदी पड़ती है। तो पर्टिकुलर डे जिस दिन यज्ञ था ये बात हो गई कि उससे एक दिन पहले हम शाम को आपके घर आके रुक जाएंगे, क्योंकि बहुत दूर है, साइकिल से आना पड़ेगा और आप वहीं रुक जाएंगे और फिर सवेरे हम आप यज्ञ करके फिर दिन में घर में निकल आएंगे। बात है अब वो उसके हिसाब से शाम को चले, शाम को 4-5 बजे चलते हैं, चलते साइकिल चला के फिर एक जगह देखे तो नदी, उन्होंने बोला कि मैं तो पूछा भूल गया उनसे, वो भी बताना भूल गया। नदी में पानी तो था ही और इतना भी नहीं था कि नहीं जा सकते, और एक पास में नाव भी खड़ी थी। तो उन्होंने आसपास देखा तो एक सज्जन वहाँ बैठे हुए थे, बोले भाई साहब ये नाव आपकी है? बोले हाँ। बोले हमें पार जाना है। बोले नहीं इतना भी पानी नहीं है कि आप पार नाव चल पाएगी, आप ऐसे चले जाओ। तो उन्होंने साइकिल ली और उस पर अंदर चलने लगे नदी के अंदर। पानी कम था तो, लेकिन अंदर जैसे जैसे गए तो पानी बढ़ता गया और पानी से ज्यादा बढ़ने की अपेक्षा क्या हुआ, उसमें कीचड़ था। अब एक जगह ऐसी आ गई उनके जो पैर है वो धंसने लगे, दलदल की तरह पैरों में धंसने लगे। अब वो पूरी ताकत से, जितनी ताकत से अपने पैरों को ऊपर उठाते, साइकिल नीचे जा रही है, फिर वो भी नहीं उठ रही, उनके पैर भी नहीं उठ रहे हैं, धीरे धीरे वो दलदल घुसते जा रहे हैं, उनकी घुटने तक आ गई और थाई तक आ गई। जब थाई तक आई तो उनको लगा अब प्राण सामने निकलने वाले हैं, एकदम सामने छवि नजर आ गई, ये हम देवता की अब लेने आया, फ्लास्ट है, गुरुदेव को याद करना हो तो कुछ बचता नहीं। उन्हें पता नहीं मैं बचूंगा या नहीं बचूंगा, मेरे घर वालों का क्या होगा, मुझे एकदम चिंता सताने लगी अपने बच्चों की। अचानक उनको और कुछ नहीं सूझा, पास लगा हे गुरुदेव रक्षा करिए, इतना ही कहना था। तो क्या हुआ, और उनको कमर तक आ गया, अंदर तक घुस के कमर तक। तो देखते हैं 2 लड़के, यंग लड़के थे और दौड़ते जो उसको नदी का जो कटाव होता है उसके ऊपर से दौड़ते हुए आ रहे थे। तो एक ने देखा भी कोई आदमी अंदर जा रहा है, फंस रहा है, तो उसने आवाज दी उससे, कोई समस्या है आपको? बोले हाँ मुझे समस्या है, मैं अंदर जा रहा हूँ, निकल नहीं पा रहा हूँ। तो कहते पतला सा छरछरा सा बदन उसका, वो लड़का आया, उसने एक हाथ से साइकिल पकड़ बाहर खींची और दूसरे हाथ से मुझे पकड़ बाहर खींची। और मैं तो हैरान रह गया, कैसे पतला सा लड़का, मैं तो पूरा अंदर दबा हुआ हूँ, उसने कैसे खींच दिया? खैर उस वक्त तो जान बची, लाखों पाए वाली बात थी, बाहर निकाल लिया और बाहर निकाल के बाहर थोड़े कपड़े जो कीचड़ में सन गए थे, दूसरे कपड़े साथ में थे, चेंज किए और फिर उनके पीछे उनसे पूछा
कि माशा आपको जाना कहाँ है? बोले मुझे एपी कराने जाना है और ये गोरा मान सिंह गाँव है, वहाँ जाना। बोले हाँ हम जानते हैं, आपको हम वहाँ छोड़ देते हैं। तो क्योंकि रात हो गई थी, तो रास्ता भी नहीं दिख रहा था, तो उन्होंने कहा कि आप वहाँ छोड़ोगे, आप मुझे ये तो बता दी कृपा करके, आपने मेरी रक्षा की, आप हैं कौन, आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं? तो उन्होंने अपना कुछ नाम बताया। बोले आप गौरव मान सिंह जी पासा गाँव में रहते हैं और वो सरपंच जी को भी जानते हैं। चलिए आपको छोड़ दो, और छोड़ने गए पैदल फिर थोड़ी देर 1 आध घंटे की यात्रा करके वहाँ पहुँचे। वो पीछे पीछे लगे, वो दोनों आगे आगे चलते रहे और वहाँ गौरव मान सिंह जी की गाँव में पहुँच गए। वहाँ पर सरपंच जी की इंतजार कर रहे थे। बोलते हैं हम देख कर दिया, कहाँ थे? अरे बोले माशा मारते मारते बचाओ कि आप पूछ रहे कहाँ पे बताया था कि नदी पड़ने वाली। वो तो उन 2 लोगों का बड़ा कृपा है, क्योंकि वो लोगों को बोल के चले गए कि वो सामने वाला उनका घर है, उसका चले गए, उनकी कृपा है, उन्होंने बचाया। बोले कौन थे वो? बोले वो नाम बताए वो थे। और दूसरी उन्होंने बात बताई कि वो आपके पड़ोसी गाँव में, गाँव का नाम बताया। जी बोले ऐसा तो गाँव है ही नहीं आपका, और जो तुम 2 नाम बता रहे हो ये नाम मैंने सुने ही नहीं है, मैं तो यहाँ पूरे क्षेत्र में जानता हूँ। भाई नेता थे नहीं तो सब जानते थे, ऐसा मैं किसी नाम से परिचित नहीं हूँ और ना इस गाँव से परिचित हूँ। जैसे लगा कि हाथों से आंसू गुरु जब जीवन में आता है तो हर क्षण हर सांस में हमारे साथ रहता है। ऐसे गुरु की कृपा सबके ऊपर बरसे। उन्हीं के श्री चरणों में अगला गीत समर्पित करते हैं। कर रहे हैं हम साधना। गुरुदेव हम जैसा आपने बताया हम साधना कर रहे हैं, शक्ति आप है, हम लड़खड़ाएंगे, हम गिरेंगे, गुरुदेव कृपा करके उठाते रहना। यहाँ पर मिल्टन बाल संस्कार शाला से किया है धनवी। हाँ, ये धनवी बड़ी प्रतिभाशाली बच्ची है, ये अभी इस गीत को समराइज करेगी। The meaning of sadhana is to control our senses. We do practice to control our senses, but due to ignorance, we fail to achieve the goals in our lives. In this song, we are requesting our Guruji to strengthen us from within so we can do sadhana in a proper way, and also to monitor us so we remain on the right track. This is another song devoted to our Guru. कर रहे हैं साधना, कर रहे हैं साधना, शक्ति गुरुवर आप देना, देखना हम गिर न पाए, देखना हम गिर न पाए, बीच में ही काम ले
अभी 4 गीत बचे हैं, 6 बजे 15 बैठना है, तो कमेंट्री कम करते हैं, आनंद लीजिए 4 गीतों का। अगला जो गीत है, भारत है देश सबकी, भारत देश सबका है। भारत देश की जो संस्कृति है वो हर जगह फैली हुई है, और जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, कल्चरल एम्बेसडर है अपनी संस्कृति के, हर जगह फैलाने के लिए है कि अच्छी सोच अगर रखेंगे तो वातावरण अच्छा बनाएंगे, अच्छा वातावरण बनेगा, निश्चित रूप से कभी अच्छे बनते हुए चले जाएंगे। मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर सबका अवतरण, 2 देशों को लेकर ऐसी परिवार चला है। आइए हम उस देश को नमन करते हैं और गर्व से कहते हैं कि हमारी संस्कृति देव संस्कृति है, उस देश के पन पे है जहाँ विश्व ने जन्म लिया, अवतार धरती को अनेकों अनेकों अवतार, अनेकों ऋषि सत्ताएं वहां पर उतरी और जन कल्याण किया। ऐसे देश को नमन करते हैं। आइए अब मैं बाल संस्कार शाला श्रेयराम बाल संस्कार शाला पढ़ सकते हैं। ये इस सॉन्ग को समराइज करेंगे इंग्लिश में। This is a patriotic song where Mother India and its people are being praised, who always pray to the supreme power for the happiness and prosperity of the entire world. Celebrate Ubuntu Sukhinaha, meaning, may all become happy, may all be free from illness, may all see what is auspicious, may no one suffer. Om, peace, peace, peace. शुभकामना जहाँ
पंजाबी रंगा गीत के श्री चरणों में समर्पित, माँ गायत्री की श्री चरणों में समर्पित हमें शक्ति दो माँ, हमें मुक्ति दो। और हमारी बाल संस्कार शाला के सीगल है यहाँ पर व्यवसाय है कि आपको शांति अग्रिम। Jai Gurudev, we are in the spiritual path and we pray to Ma Gayatri to give us strength and guidance to keep us moving on the righteous path. We do not ask for any material desire from you, Ma, but we always need your love and kind blessing for our spiritual development. Ya Devi Sarvabhutesu Matrurupe Sansita Namastasyai 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 Namo Namaha। हमें भक्ति दो माँ, हमें शक्ति दो माँ, हमें भक्ति दो माँ, हमें शक्ति दो माँ, सतत साधना की सफल मार्ग दे। हमें भक्ति दो माँ, हमें शक्ति दो माँ, सतत साधना की सफल मार्ग दे। नाम तुझसे आपसे आपसे माँ, विमल ज्ञान की किरण भागते नाम तुझे आपसे आपसे माँ, विमल ज्ञान की किरण भागते हमें भक्ति दो। विजय भावना से प्यार से भरे हो,
रेडी करिए। थोड़ा लाइट चाहे तो बंद कर सकते हैं, कमर सीधी कर लें। गायत्री महामंत्र के माध्यम से हम प्रार्थना करेंगे जगत कल्याण की, सबको सद्बुद्धि, सबको सही रास्ता। मानसिक रूप से ये यज्ञ जो है कई तरीके से होता है। द्रव्य यज्ञ होता है, जिसमें हर सामग्री यूज करते हैं, घी यूज करते हैं। तो में दीपक की बनाने दीपक जलाइए और भाव से आप यज्ञ कर सकते हैं। बैठे बैठे जैसे कि आप वास्तव में यज्ञ कुंड के सामने बैठ के यज्ञ कर रहे हैं, यहाँ दीपक प्रज्वलित हो रहे हैं और यहाँ पर हम लोग गायत्री मंत्र बोलते हुए आहुतियाँ देंगे। आपको यदि किसी तरह की समस्या है, किसी तरह की परेशानी है, स्वास्थ्य रिलेटेड कोई इश्यूज है, तो कुछ गुरुदेव बद्री माता जी गायत्री माता की फोटो है, वहाँ पर श्री चरणों में चढ़ा दें और एक संकल्प भी लीजिए, गुरुदेव हमें इससे उबारिए। हम देखिए आपका काम कैसे करते हैं, दौड़ के करेंगे। कोई कमिटमेंट तो चाहिए, फ्री फंड में नहीं होता। गुरुदेव खुद कहते हैं समाज का काम करोगे सब शक्तियाँ तुम्हारे साथ दौड़ेंगी, अपने लिए रहोगे तो अपने ही हो जाओगे, केवल अपने हो जाओगे। तो समाज के काम के लिए संकल्पित हों। और आइए हम लोग यहाँ से मंत्रों के माध्यम से आहुतियाँ प्रदान करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं गायत्रीं नमः। ओम
सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, सबके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए, किसी का यदि जन्मदिन है, आप में से किसी का जन्मदिन है इस महीने? प्रीतम का आज जन्मदिन है, और किसी का बर्थडे हो या मैरिज एनिवर्सरी इस महीने या इस मंथ में किसी का बर्थडे हो, तो उनके लिए विशेष आशीर्वाद हम प्रदान करते हैं। और वैसे भी सबका अच्छा स्वास्थ्य हो, सब अच्छे मार्ग पर चलें, भगवान से कामना करते हुए आइए मिलकर महामंत्र मंत्र भगवान शंकर का ध्यान करें, शिव का ध्यान करें, कल्याण की कामना करें और हमसे प्रदान करें। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं मामृत्युञ्जयं नमः। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जयं नमः। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जयं नमः। भगवान सूर्य नारायण का ध्यान करते हुए आइए सूर्य गायत्री मंत्र से आहुति प्रदान करें। ॐ भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय नमः। आज हम सभी देवी शक्तियों को प्रणाम करते हैं। ओम नमोऽस्तु बन्धाय सहस्रमूर्ते सहस्रभाराय शिरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। शांति में सिंचन किया जाए, वहां पर जल सिंचन कर सकते ऊपर हाथ जोड़ लें। भगवान से ये प्रार्थना, सबके घर में सुख शांति हो, सब अच्छे रास्ते पे चले, समृद्धि को वर्ण करें, श्रेष्ठता को वर्ण करें, अपने जीवन का लक्ष्य समझें। जीवन बहुत महत्वपूर्ण दिया हुआ है, मनुष्यत्व को प्राप्त किया है हमने, अब देवत्व को बढ़ना है। मनुष्य में देवत्व होता है, प्रभु जो देव बना रहा उसको हम सार्थक कर सकें। संजय जी सबके ऊपर जलवर्षा करेंगे, यहाँ से कुछ पढ़े जाएंगे। ओम शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति 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 सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु। विसर्जन से पहले एक सूचना। पहले तो आप सबका धन्यवाद, आप यहाँ पर आए और ये भजन संध्या में शिरकत करके वास्तव में एक सम्मान ही बढ़ाया। हम छोटे छोटे कार्यक्रम का होगा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे जो अगले कार्यक्रम है, एक तो अगस्त 1 को पिकनिक गायत्री परिवार करने जा रहा है, और इसकी अगर आप प्रोफेशनल कोर्ट गए हैं इसी शाखा में तो उसके पीछे ही पार्क है। मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूँ, लेकिन गायत्री परिवार टोरंटो के यहाँ अपने परिजन आए हैं, मधु भाई और बाकी सब हैं,
और वहाँ पर स्टॉल का भी फ्लायर है, तो आप उसको ले सकते हैं। उसमें जरूर आप भाग लीजिए, अपने बच्चों को लेके आइए, अपने फ्रेंड्स को लेके आइए। बड़ी बहुत अच्छा लगेगा आपको, जितने वातावरण मिलेगा आपको फन करेंगे और लर्न भी करेंगे, नई नई चीज़ें सीखेंगे बच्चे भी और हम भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जरूर पधारें। सुबह अगर आप योगा लाइक करते हैं, और लाइक भी करना चाहिए, जीवन योग में है, तो 9:30 बजे वहाँ पे योगा शुरू करेंगे हम लोग। जैसे कि लास्ट ईयर जिन्होंने अटेंड किया है उनको मालूम होगा, तो 9:30 बजे आप जरूर आ जाएं। ज़्यादा लेट करेंगे तो धूप तेज हो जाएगी, इसलिए वो योगा करिए। और फिर उसके बाद बाकी कार्यक्रम वहाँ पर खूब दिन भर चलेंगे। आप शामिल हुई, आपसे ये निवेदन। फिर 5, 6, 7, 5, 6 और 7 अगस्त को एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। रश्मिका मेन जो है, रश्मिका मेन पटेल, वो इंडिया से आ रही हैं गुरु गीता का कथा करने के लिए। बहुत शानदार कथा करती हैं। आप यूट्यूब पर भी जाके उनको अगर नाम डालेंगे, रश्मिका में प्रज्ञा पुराण की कथा करती हैं, भागवत की कथा करती हैं, गुरु गीता की कथा करती हैं, और बहुत सरल कार्यक्रम मिशन भी। डबोई में गायत्री शक्तिपीठ है, उसका संचालन भी करती हैं और कन्याओं को तैयार करती हैं, यज्ञ कराना, संगीत सिखाना, बहुत काम करती है मिशन का। तो आपसे सबसे निवेदन है आप जरूर उसका लाभ उठाएं। और ये कालीबाड़ी में एक कार्यक्रम होगा, और उसकी सूचना के शायद भी वहाँ पर है, भाई दिखा रहे हैं स्टॉल पर, तो आप वहाँ से जरूर हैं। अखंड ज्योति जो गायत्री परिवार के परिवार पढ़ते ही है, योग शक्ति गायत्री पढ़ते ही है, लेकिन जो गायत्री परिवार से परिचित ज़्यादा नहीं है और अखंड ज्योति के बारे में बिना कहीं से सुना है या उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो परिवार भी वहाँ पर बैठे हैं, अखंड ज्योति दिखा रहे हैं योग शक्ति गायत्री, वहाँ से आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और मदर भाई भी वहाँ पर है, दोनों मन भाई यहाँ पर एक्चुअली, और मदर भाई और पुलिस भाई अखंड ज्योति के कारोबार में संभालते हैं, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने ये सारा साहित्य यहाँ पर लिखा हुआ है, 3,000 से ज़्यादा बुक लिखी है, और ये गायत्री को हमें क्या एक अनुभव दे है विश्व परम पूज्य गुरुदेव की तरफ से। पूरे वेदों में और उपनिषदों में, पुराणों में जहाँ कहीं गायत्री के बारे में लिखा गया उसका संकलन होता है। ये रिसर्च है, इसको डीएड समझ लें, पीएचडी तो कुछ नहीं है, डीएड समझ लें, कुछ कर लें गायत्री के ऊपर, इसको आप पढ़ें। एक जैसे गीता होती है, अपने पास रखते हैं, भविष्य में ये अपने सिरहाने के पास लोग रखने लग जाएंगे, जिनको गायत्री वाला जानते रहेंगे सर्वोत्तम सर्वोत्तम, इसका जरूर रखें। और भी तरह तरह की बुक्स हैं अपने जीवन को अच्छे रास्ते पे, अच्छे सांचे पर ढालने के लिए, प्रभु गुरुदेव लिखी, उसको आप जरूर लेते जाएं। वहाँ पे स्टॉल है, और आपसे निवेदन है एक बार हम लोग जरूर करें। अभी मैं सेजल पटेल को वेट करता हूँ, वो यहाँ पर आके फोटो साइंस करेंगे, बड़ी स्पीच होगा। Good evening, everybody. I just wanted to take some time to say thank you on behalf of GPWO, to thank the City of Burlington for providing this wonderful facility for us. I also wanted to thank the Mahila Mandir for cooking and preparing this wonderful food, as well as to all the participants, including everyone who sang the wonderful bhajans for us and the youth for their presentation. I also wanted to say a special thank you to Roger, Catherine, and Amrita for taking time out of their busy schedule and joining us today. And lastly, I wanted to thank all of you invitees for coming, because without you, this event would not have been successful. And we also look forward to your support in the future as well. So thank you so much, and dinner is being prepared for us, so I'd just like you to join us for dinner before you guys leave. Thank you. और थैंक यू सेजल। और यहाँ पर श्रेया वीडियो बैठी है, चुपचाप अपना काम कर रहे हैं। यहाँ पर सारे गीत जो स्पीच स्क्रिप्ट लिरिक्स थे सब हमारे हिसाब से सिंक्रोनाइज कर रही थी, उसके लिए जोरदार तालियां। कृष्णा और रोशनी ने प्रिपेयर किया था, और ये 2 बच्चों के लिए जोरदार तालियां। आइए हम जयघोष करते हैं। जब कोई विन कर लेते राजा महाराजा तो जयघोष करते थे, दुल्हन भी बजाते थे और ढोल लगाने बजते थे। यहाँ पे हम लोग जयघोष करेंगे, परम पूज्य गुरुदेव की गायत्री माता की जयघोष करेंगे, नारे थोड़े लगाते हुए, उसके बाद विसर्जन करेंगे और फिर अपने माँ प्रसाद को पढ़ेंगे। गायत्री माता की बोलो जय जय जयकारो, गायत्री माता की बोलो जय 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 जयकारो, परम पूज्य गुरुदेव की बोलो जय 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 जयकारो, परम पूज्य गुरुदेव की बोलो जय 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 जयकारो, कन्हैया माता जी की बोलो जय 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 जयकारो, कन्हैया माता जी की बोलो जय 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 जयकारो। एक बनेंगे, एक बनेंगे, एक बनेंगे।
शांति अभियान। ज्ञान यज्ञ की लाल मशाल, ज्ञान यज्ञ की ज्योत जलाने नया समाज बनाएंगे। जन्म जहाँ पर अन्न जहाँ का वस्त्र जहाँ के ज्ञान जहाँ से वह प्यारा 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 देश की रक्षा कौन करेगा? देश की रक्षा कौन करेगा? निर्माण कैसे होगा? निर्माण कैसे होगा? आपका मस्तक ऊंचा होगा, आपका मस्तक ऊंचा होगा। मानव मार्ग, मानव मार्ग, नर और नारी, नर और नारी, जाति वंचित, जाति वंचित, हमारी युग निर्माण योजना, हमारा युग निर्माण संकल्प, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, बोले माता गायत्री की, माता गायत्री की, विश्व माता गायत्री की, आज के आनंद की, सभी संतों की, सभी सज्जनों की, परम पूज्य गुरुदेव की। ओम। वहां पर थोड़ा सा विसर्जन कर दीजिएगा, विसर्जन कर दीजिए वहां पे। चावल फूल वहीं पे रखे हुए हैं। आइए दिव्य शक्तियों का को नमन करें और जैसे उनको इनवाइट किया था, उनका स्वागत किया था, पूजन किया था, उनसे प्रार्थना, उनका प्यार और आशीर्वाद सब पे बरसता रहे। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजाय मामिति येषां समर्जतं पुनरागमनाय च पुनरागमनाय च पुनरागमनाय च। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। छोटा सा प्रयास था, कोई अगर गलती हुई तो क्षमा चाहते हैं और फिर इसी तरह